الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلوات دعا پروردگار عالم بان جانا صفی اللہ کی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے ماشاءاللہ اتنی تعداد میں حلالیوں کا پاک ذکر میں تشریف لانا آپ کی سانس جناب پاک سیدہ کی پاک نالین کے صدقے مولا عظیم کی بات شکر فرمائے یعنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں پر کی تشریف ماہ مالک سب کی جس کے اور چاہتے رضا فرمائے خصوصی دعا ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس دعا پہ ضرور آمین کہیے میرے اللہ روح زمین پہ جہاں جہاں بھی امام حسین کی مجلس اور ماتم جاری و ساری ہے مولا تمام مقامات کی حفاظت فرمائے مجھ سمیت جتنے بھی ماتمی بھائی مولا حسین کا نوکر بیمار ہے پروردگار پاک سجاد بادشاہ کی جوتی کے صدقے میں سے اول سے آخری بھائی تک ایسی صلوات پڑھنی ہے کہ پاک ابو طالب ہم سب پہ راضی ہو جائیں اجازت جناب اللہ آپ کو سلامت رکھے میں جب بھی منشی باغلدے میں نوکری کرتا ہوں میں بڑا مطمئن ہوتا ہوں کہ آپ میری اوقات سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں آج میں آپ کی دعا کا زیادہ محتاج ہوں کیونکہ آج صحت خراب ہے 7-8 دن سے بخار کی وجہ سے بھی ڈاکٹر نے منع کیا تھا کہ کھانا نہیں کھانا روٹی اور چاول وغیرہ آپ کو پتہ گجرانوال کے بندے کھاتے بہت ہیں تو پھر وہ بسکٹ اور چائے وہ اس طرح کی کمزوری کافی ہے تو اس لیے شاید اس طرح سے میں نوکری نہ کر سکوں یا ہو سکتا ہے آپ کی دعا آ جائے تو شاید اسی طرح سے دوبارہ بھی ہو جائے انیس جعفری صاحب کہاں گئے انیس جعفری صاحب جی انیس جعفری صاحب نے ایک سخت ترین حکم دیا ہے انہوں نے کہا جی یہ لازمی پورا کرنا میں جناب کو 15-20 منٹ میں کوشش کرتا ہوں کہ حکم پورا ہو جائے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے حکم کیا کیا ہے انہوں نے کہا جی پاویں 5 منٹ پڑھو پاویں پورا گھنٹہ صرف قرآن پڑھنا ہے بھائیوں کو نہیں آتا چودھری صاحب ادھر سارے معصوم بچے بیٹھے ہیں بولنے والے سارے بھائی ادھر سارے بھائی ادھر یہ مطلب ہے آج داد کا معیار وہ نہیں میں نے چیک کر لیا اچھا پکی بات مالک آپ سلامت رکھے خان صاحب ملک صاحب صرف قرآن ایک لمحہ مجھے دیجئے تاکہ میں روڈ کے اوپر بیٹھ کے بتاؤں کہ شیعہ قرآن کیسا پڑھتے ہیں اللہ آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہا ہی یہ جاتا ہے عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ اب تو بلکہ سوشل میڈیا پہ یہ باتیں آ چکی ہیں کہ ان کا قرآن جو ہے نا وہ 40 پاروں کا ہے باقی قرآن لوگوں کا 30 ہے اور ہمارا کتنا جی اور پھر اسپیشل بتایا گیا ہے کہ ان کے جو آخری 10 پارے ہیں وہ بکری کھا گئی اور خدا کی قسم یہ لطیفہ نہیں ہے یہ سچ ہے ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شیعوں کے آخری 10 پارے جو ہیں وہ بکری کھا گئی حالانکہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سامنے گھوڑا نکلے گا اور گھوڑا نکال کے بتاتے ہیں کہ ہمارا تعلق شروع سے نہ کسی بکری سے ہے نہ کسی بکرے سے ہے میرے قریب والے بھائی آپ کو آواز بالکل نہیں آ رہی مالک آپ کو سلامت ہے کہ سوالات نعرہ حیدری مالک آپ کو سلامت ہے انشاءاللہ قصیدے کا جو عروج ہے وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا 27 کو آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کیا جائے آج جتنا مجھے انیس بھائی نے کہا ہے تو اللہ آپ کو سلامت رکھے انیس بھائی نے حکم بھی دیا اور ٹائم بھی شارٹ ہے اس لیے پھر جو کسر رہ گئی وہ انشاءاللہ میں اگر آپ کی دعاؤں سے زندگی رہی تو پھر 27 کو انشاءاللہ میں وہیں سے آ کر قرآن کنٹینیو کروں گا مالک آپ کو سلامت رکھے آپ ذرا چیک کیجئے کہ ایک بیمار بندہ آپ کے سامنے جب قرآن پڑھنے لگا ہے تو کیسا پڑے گا اللہ آپ کو سلامت رکھے جتنی میری بیٹیاں ہیں ماں جی بہنوں آپ بھی ذرا دعا کیجیے گا اللہ آپ کو سلامت رکھے تھوڑا سا بس ماحول بنائیے تاکہ میں 12-15 منٹ میں آپ کو سلام کروں پروردگار ہمیں کہا جاتا ہے کہ شیعہ کیا جانے قرآن کیا ہے بیٹا بیٹھ جائے بیٹا میرے پاس آپ کو پتا ہے ادھر ادھر کی باتیں تو ہے نہیں کہ ایک ادھر سے پکڑوں ایک ادھر سے میں نے تو آپ کو موضوع سنانا ہے قرآن کا خدا آپ کو سلامت رکھے اور میں جی میرے بھائی میں آپ کا عاشق بھی اسی لیے ہوں کہ آپ موضوع بڑا اچھا سنتے ہیں خدا آپ کو سلامت رکھے ادھر ادھر کی باتیں میں میری جیبیں بھری ہوئی ہیں 2-4 لال مواقع چلا جاؤں وہ کوئی مقصد نہیں ہے میرے بھائی
परवरदिगार ये बता कि तेरा कुरान कितना सच्चा है। हम पढ़ कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। फरमाया ये इतना सच्चा है कि इसमें नाफुल बराबर भी झूठ नहीं। परवरदिगार ये बता तेरे कुरान में इल्म कितना है। पढ़ कुरान नज़्ज़ल अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै। हमने पूरी कायनात का इल्म कुरान के अंदर रखा है। परवरदिगार ये बता तेरे साल के 12 महीने कुरान कब आया। मुहर्रम में आया, सफर में आया, रबीउल अव्वल में आया, रबीउल सानी में आया, जुमादी अव्वल में आया, कब आया। हमें पढ़ कुरान शहर रमज़ान अलैहि उनज़िला फ़ीहिल कुरान। हमने इसे माह मुबारक रमज़ान में नाज़िल किया। परवरदिगार रमज़ान में दिन भी है रात भी है, ये बता दिन को है रात को है। पढ़ कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन। हमने इसे मुबारक रात में नाज़िल किया। परवरदिगार जो मुबारक रात है इसका कोई नाम भी है। तो मैं पढ़ कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। हमने इसका नाम लैलतुल क़द्र रखा। परवरदिगार ये बड़े लयकार हलाली पूछते हैं ये तो लैलतुल क़द्र है इसकी अपनी कदर क्या है। ये मंशूबान लगा है, ये मंशूबान लगा है, ये खिताबें सुनने वाले मालिक के ज़माना आपके हाथ सद के जावा जनाबे से क्या कहने लगे साहब आप सच्चे हैं। अनवर साहब आप सच्चे हैं। मालिक आपको सलामत रखे। भाई जी पहले जुमले पे थोड़ा अच्छा बोलना। सवाल किनारा है नहीं मेरे सोने वाले दिन आज मेरा पुत्र मेरा साथ नहीं। मालिक आपको सलामत रखे। देखिए मैं तसल्सल के साथ कुरान पढ़ रहा हूँ आपको पता है। और जब मैं चला जाऊँगा फिर आप कहेंगे यार साडा पुत्र बाकी मुश्किल काम कर रहा है। जब मैं चलूँगा फिर आपको एहसास होगा कि ऐसा पढ़ना मजाक नहीं है। आप हज़ारों केस से ढूंढेंगे फिर भी आपको इस तरह का मेहनत और मवाद नजर नहीं आएगी। ये आपकी दुआओं का सदका है, ये मेरी माओ बहनों की दुआओं का सदका है। मालिक आपको सलामत रखे। भाईजान जरा जल्दी पे आ जाए। भाईजान आगे भाई नहीं दांत थोड़ी जल्दी उड़ाओ मैं अपना बंदा आगे भाग फटाफट पढ़ाओ। एक बंदा अपना आगे भाग पड़े मेरे साथ। मालिक आपको सलामत रखे। आपको पता है मुझे बाग में मेरे सारे अपने हैं। जनाब सईदा आपको सलामत रखे। मैं थोड़ी देर के बाद हो सकता है कि आपकी दुआ से ताकत इतनी आ गई तो अगले मैं 2-4 जुमले फिर खड़े होकर पढ़ूंगा इंशाल्लाह। अभी तक तो कुछ ना कुछ बेहतर हुआ है। अल्लाह आपको मालिक आपकी इज्जत रिस्क में आपको खबर ये है। जनाब सईदा आपको सलामत रखे। भाईजान जरा मेरे को देखिए तो ताकत जुमला कहो। भाईजान किसी देखिएगा। परवरदिगार ये जो लैलतुल क़द्र है इसकी अपनी कदर क्या है। पढ़ कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ये 1000 महीनों से अफजल है। क्या मतलब। मैं सुनो जो इस रात में एक मरतबा कहे या अली वो यूं समझे वो 50 साल अली की तस्वीर है। दो मिनट के बाद आपको अंदाजा नहीं होगा आप मुझसे दावत में अर्श पे चले गए भाई। अल्लाह आपको सलामत रखे। इसका मतलब है जो इस रात एक मरतबा कहे या हुसैन वो यूं समझे वो 50 साल हल्का हुसैनी में खड़ा रहा। जो इस रात एक मरतबा एक रकअत नमाज पढ़े वो यूं समझे वो 50 साल मुसल्ला इबादत पे खड़ा रहा। जब कुरान के छठे बार से पूछा गया मौला इतना फायदा इतना प्रॉफिट इतना मुनाफा इतना बिजनेस वजह क्या है। तो मैं तू क्या समझता है लैलतुल क़द्र के रात का नाम है नहीं चलिया लैलतुल क़द्र मेरी दादी ज़हरा का। क्या साइंस रहा है बेटा शाबाश बेटा। मालिक के ज़माना आपके हाथ को सलामत रखे। भाईजान आप मेरे साथ है। भाईजान अल्लाह आपको सो खुदा आपको सलामत रखे। तालिब फैसल का हुक्म था अल्लाह पाक की कसम आज मेरे को पूरा बहाना सी कि मैं नहीं पढ़ सकता। कुरान की कसम जैसी सही थी। आप मेरा चेहरा देख रहे हैं ना जैसे पसीना चढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी आपकी मोहब्बत है। जी माँ जी बाजी जरा मुझे पढ़ने दीजिए बाजी प्लीज मेहरबानी। अल्लाह आपको सलामत रखे प्लीज। थोड़ी ज्यादा रहमत तो है ही नहीं बस आपने यूं करना और मैंने सलाम करके चले जाना है। मैंने फटाफट 15 20 25 35 40 आज तक मैं पढ़ के मैं यूं जा रहा हूँ आपको। अल्लाह आपको सलामत रखे। परवरदिगार क्या फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ये 1000 महीनों से अफजल है। परवरदिगार की बात तो बता ये तेरा कुरान है ये जमीन से पैदा हुआ या आसमान से नाज़िल हुआ है। अंज़लना नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु तंज़ील बाबे तफ़रीम अंज़ल युनज़्ज़िलु बाबे फ़ाल कभी अंज़ल का कभी नज़्ज़ल का कभी अंज़ल का। जैसे आप कहते हैं कभी 10 कभी 12 कभी 10 कभी 12 कभी 10 कभी 12 आप कहते हैं कभी 10 कभी 12 तो इस तरह मैं चलूँ कभी अंज़ल कहा कभी नज़्ज़ल कहा। मतलब आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ। आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ। कभी 10 कहते हैं कभी 5 कहते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं इसी तरह हमने नाज़िल किया। परवरदिगार नाज़िल वो चीज़ होती है जो ऊपर से नीचे आए। तो ये कुरान अगर नाज़िल हुआ है होगा जी जल्दी बैठेगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं आपसे भी खुशी दुआ चाहता हूँ। भाईजान पहलवान जी जाती की थी मेरे इधर लम्बा भाग के मेहरबानी पहलवान जी मैंने लिखा जब ऊपर से कुरान आया है तो मालिक ये बताओ उठता हुआ खुद ब खुद आया है ये हमसे क्यों लाया था। पढ़ कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़ला बिही रूहुल अमीन। हमने इसे जिब्रील के जरिए भेजा। अभी तक जो मेरे भाई चुप है वो सुन ले। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए कुरान लाने वाला हजरत जिब्रील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हजरत जिब्रील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान लाए हैं। भाईजान हजरत जिब्रील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान लाए हैं। सारे समझने के लिए मेडिसिन खा चुका है इसका दिमाग खराब हो गया और मौलवी मैंने कहा मार कुरान की कसम आपने सही तो कहा मौलवी साहब चिट्टे रंग की
बाल्टी में काले रंग की स्याही घोल के हरे रंग के ब्रश के साथ रात को जगह ढूंढता है कि मैं कहां लिखूं काफिर काफिर शिया काफिर। और हमारी बात का जवाब देना मुश्किल है, वरना सर पे कुरान रख के बता, जब कुरान लाने वाला अलैहिस्सलाम है, बचाने वाला रज़ी अल्लाह कैसे है? मालिक ज़माना आपके हाथों को सलामत रखें। जो हाथ सुना पे है किसी कमीने का हटा लो, बेटा बड़ा खोलेगा, मालिक आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों को सलामत। अजय कुरान की कसमें महीने शुरू नहीं हुई, मलिक साहब अभी शुरू नहीं होगी, मैं आपको बताऊंगा कब शुरू होगी। जब शुरू होगी तो मैं चला जाऊंगा, इतनी देर आपने कर करनी है, जरा मेरे को देखिए, मालिक आपको सलामत रखे। अच्छा परवरदिगार कुरान कौन लाया? जिब्रील। मालिक वजह? परवरदिगार तेरे पास लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, हजारों नहीं, अरबों नहीं, खरबों नहीं, लाखों लाख फरिश्ते हैं, जिब्रील ही क्यों? यार 2 मिनट रास्ता बंद नहीं हो सकता? अच्छा भाईजान फिर जाकर चेंज कर लें, क्योंकि मैं तो आपको पता कुरान पढ़ता हूँ, तो जहाँ पे रास्ता बंद हो वहाँ मुझे बताया करें ना, ठीक है? मालिक आपको सलामत रखे। आपको पता आपके पास हजारों लाके आते हैं जिनके पास डायरियाँ होती हैं, वो अपनी डायरी लेके पूरी पढ़ते हैं, वो ठीक है। अगर कुरान सुनना हो तो फिर आपको माहौल बनाना पड़ेगा। अल्लाह आपको सलामत रखे और ध्यान रखेंगे। कुरान लाया जिब्रील। मालिक मालिक इन्ने फरिश्ते छड़ के जिब्रील क्यों? नहीं मुंशी पागल दा फरमाया कुरान में ताकत इतनी है, किसी कमी फरिश्ते की औकात क्या है? ये पागलता है, ये लाहौर है। अल्लाह आपकी जवानियां सलामत रखे। जब मैं करीब आई है आज खुशी दुआ चाहिए, आज भाईजान खुशी दुआ चाहिए, बीमार बंदा जी आज मेहरबानी करी, मालिक आपको सर के जाना। अच्छा परवरदिगार तो फिर ये बड़े बड़े सियाने बंदे हैं, इनके अंदर भी मौलवी के मरे ने। मालिका फिर ये पूछते हैं कि ये बता, तू कहता है कुरान में ताकत नहीं है, चल जरा लगते आज ये तो बता दे कितनी ताकत है। फरमाया पढ़ कुरान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लौ अंज़लना हाज़िल कुरान अला जबल लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। फरमाया इस कुरान में कितनी ताकत है, अगर किसी पहाड़ पे नाज़िल करते वो रेजा रेजा हो जाता। भाई जी पहाड़ लैलन का नहीं होता, पहाड़ पत्थर का है। और कुरान कह रहा है मेरी अलामत ये है, मैं जब भी पत्थर पे आता हूँ ना, मैं पत्थर को तोड़ देता हूँ, वो 21 रमजान हो या 13 रजब। मालिक आपको सलामत रखे। आपको पता तो मैंने जमाना में साल नहीं आंदा भाई साथ में सदके जावा जनाब सही तो ਤੁਹਾਡੀ क्या बात है, ਤੁਹਾਡੇ तरीकों की क्या बात है, पानुटू जी अल्लाह की कसम इन्हां दी क्या बात है, कुरान की कसम ਤੁਹਾਡੀ क्या बात है। एडा सोहना मौजू सुनने वाले बंदे यार, कुरान ते इन्हें कोई बोलना कि तुम बोलते हो, तुम सुभान अल्लाह। मौला पैदल बांग सलामत रखे। लो फटाफट मेरे साथ आ जाए। अच्छा परवरदिगार इतनी ताकत है, इतनी ताकत तेरे कुरान में, इतनी ताकत कि पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। जे मैं अगले को 2 जुमले कुर्सी का सहारा लैके खलो के पढ़ा तो नाराज नहीं? सलामत रहो। लो जी भाई चल हूँ ठीक है जी, हूँ बोलोगे जनाब, खैर है ना, मेहरबानी। लो जी हूँ सिर चुका जी। परवरदिगार कुरान में इतनी ताकत है ना, पहाड़ कुरान नहीं चुक सकता। नहीं तो मालिका पहाड़ तो ताकत की अलामत है। फलां साहब मातम के पहाड़ है, फलां जाकिर साहब मसाहिब का पहाड़ है, फलां मौली साहब फजाइल का पहाड़ है, फलां चौधरी साहब सखावत का पहाड़ है, फलां खान साहब लै और सुर का पहाड़ है। परवरदिगार तू मैं पहाड़ी इन्हें जोगा नहीं कि वो कुरान को उठा सके, तो फिर बताना वो कौन सी ताकतवर चीज है जो कायनात के पहाड़ों से ज्यादा ताकतवर है, और जिसने आराम से कुरान उठा लिया। तो मैं पढ़ कुरान नाज़ल बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, जो 2 जहां से ज्यादा ताकतवर हुसैन के नामे का दिल है। आपके हाथ को सलामत रखे। तो ये मुझे ये बताइए नफ्स पे दाद है या सुर पे है?
सॉरी मैंने तो समझ आ गई, मुझे समझ आ गई है, क्योंकि बात में सुना मैंने कहना मुश्किल काम अगर चाहना कि बुखार की वजह से साउंड वो नहीं है, लेकिन वाकई सही कह रहे थे कि मुझे आप भी मजा आया। मैं कहा जी सही कह मुंह निकल गया, मेरा कमाल की निकल गया। अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा परवरदिगार क्या कहा? कुरान मेरे नबी के मालका, तेरा नबी सोना है। मैं रज रज के मालका पुछते ने किन्ना कुछ सोना, फरमाया एडा सोना ही, मैनू मेरी कसम एडा सोना ही इंज करे तो यूसुफ दे अल्लाह बच्चे को साल सादे बात रहे, उधर प्यो दाद दे रहे, उधर पुत्र दाद दे रहे हैं। हलाली नस्ल पाकीज़ा नस्ल, अली अली करना नहीं। अल्लाह वास्ते एक मर्तबा नारे बुलाए, नारे बुलाए। मुस्तफा साहब 13 रजब पक्की हो गई, 13 रजब पक्की हो गई। मेहरबानी जी अब कोई फर्क फायदा हो गया जी। 13 रजब पक्की तो नहीं पता कि ऐसी केड़ी पक्की है नाले मिठू कहना है तो मिला मिठू मेरा अपना भाई है, अपना घर है मेरा वैसे फिर कभी 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 मिस हो जाती, फिर की करिए। मेरे बारे मशहूर है मौलवी शरीफ आदमी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मैं जो कि तुहाड़ा नौकर हाँ तो कोई आकर नहीं रखी इन करने का बानी फिर मन मुन जाते हैं। हूँ वेख्या वेख्या जे कंधा चो आवाज ना ना आए दाद दी तो मैं तुहाड़ा पुत्र ही नहीं। वो गल ना मुक गई, गल मुक ना गई। या रसूल अल्लाह कितने सोने? फरमाया मेरा मोहम्मद इतना सोना है जिसके एक कतरे से यूसुफ बनता। तो परवरदिगार इसका मतलब है तेरे मोहम्मद का हाथ भी बड़ा सोना होगा। फरमाया रज रज के कौन नहीं रज रज के शाना रज रज के आंखें। तो मालिक फिर तूने मोहम्मद के हाथ पे कुरान नहीं उतारा, कोहनी पे कुरान नहीं उतारा, शाने पे कुरान नहीं उतारा, आंखों पे कुरान नहीं उतारा, नाक पे कुरान नहीं उतारा, होंठों पे कुरान नहीं उतारा, कुरान उतारा भी तो दिल पे। वजह क्या है? सारा सोना मोहम्मद छड़ के दिल पे क्यों? फरमाया कायनात के हरामी मुल्ला की दाढ़ी पकड़ के उसके मुंह पे लित्तर मार के कह रहा हूं बकवास न करना। जिस मोहम्मद का दिल इतना मजबूत हो उसका दिमाग इतना कमजोर नहीं होता। ये लाहौर का मिजाज है। तुझे की समझदार नजमे अभी मैंने फिक्र कहा भी नहीं क्या क्या नजमा मिला कुरान की कसम चलते जाओ। और जो मेरे बीच लेते यार चुप थे सवेला किनारा है के जमाना आपके हाथों को सलामत कर। पाजी ये फिक्र मैंने कहा था अभी आधा हुआ और आपने समझ लिया। मैं कहना सा जे कंधा चो आवाज दाद दी ना आए अगो मैं सलाह की रखिए। मैं क्या मैं तुहाड़ा पुत्र नहीं आख्या कि नहीं? कुरान की कसम बड़ी वड्डी बददुआ जी मैं अपने आप को बददुआ दे रहा कि बंदा अली वाले का नौकरी को निकल जाए भावें जी उस तो वड्डी बददुआ है कोई? मैं कहना मैं तुहाड़ा नौकर ही नहीं तुहाड़ा पुत्र ही नहीं जे तुहानू कंधा चो महसूस ना आए। एक बारी तरला की है आ जी मेरी भैन ने थोड़ी आवाज आ रही है एक बार खामोशी होइए। माँ जी बाजी एक बार थोड़ी खामोशी होइए। पक्की को अच्छा चलो माँ जी खैर भाईजान दो बंदे अगर बह जाओ तो बाकी ज्यादा लोगों को आवाज नहीं। मेहरबानी भाईजान छोटे भाई चलो खैर खैर कोई भाईजान पड़ा हो थोड़ा भाईजान एक भाई की वजह से माँ जी कह रही है कि बेटा या नीचे बैठ जाए या थोड़ा साइड पर जाए ताकि ज्यादा मोमिन तक हवा पहुंचे। अच्छा पक्की गल है जी ये कुर्सी फड़ ली जी। भाजी दरिया चो भाजी कंधा चो भाजी डब्बिया चो गई आ रही है आवाज ना आए मैं तुहाड़ा नौकर नहीं। ए झोली है तो मैं ज्यादा वो गल्लां नहीं करनियां कि इंज कर लेंगा तो कर लेंगा। ये जुमला ही एडा वड्डा है तुहाडे कलेजे दे लहू ने तुहानू मजबूर करना है कि तुसीं सारे इंज कलेजा फाड़ के बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह कहता है मैंने कुरान उतारा मोहम्मद के दिल पर। सिर्फ रिक्वेस्ट ये है ऐसा जवाब दीजिए ना शिया भज सके ना सुन्नी भज सके ना भाभी भज सके तवानू मनना पवे। बस इतना बताइए कुरान आया आपके दिल पर ये आपका दिल क्या है? मैं चाचा के शिया सुन्नी भाभी किताबें खोल के देख अल फातिमा तो कल भी मेरा दिल ज़हरा है।
جو سال سمجھے آواز رکھو میں کیا سنا کلے تو آواز آئے گی میں کیا سنا ہر جگہ تو آواز آئے گی اور ہر جگہ تو آواز ہے پھر سوانا کنارا مالک کے بنانا آپ کے صدقے جانا بھائی جان صدقے جانا جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے بھائی ارشاد جی پاشیرو جی جملہ آکھا لگا صحیح صاحب ادھر رکھو یہ تھوڑا باجی پھر شور ہوتا ہے باجی جی شور آ رہا ہے مہربانی تھوڑی مہربانی میری بھن ہے ایک تھوڑا جا کنٹرول ہے اگر فرق پہ آ گیا اللہ نے کسی نے فرق پہ آ گیا ایک فکر ہو رہا نا کہ جی تھی اگوں آخو گے نا پتر ایک اور سنا تو دو ہو جائیں گے نہیں تو پھر یہ میرا آخری ہے جہاں ہوں آخر لگا یہ ہے ہی ایڈا وا ہے کہ ہو سکتا تھی گھٹ بولو تو میں اسے گسے نہ دل کرے پر ٹکر لوہے کی کسی دماغ دیا کہ اینی محنت کی ہے 15-20 آیتاں پڑھیاں نے اینی محنت کر کے ساہ چڑھ لے تو فکرہ تو سب تو بڑا مجلس تو نہیں پا مٹھو جی قرآن کی قسمیں مجلس تو نہیں 5-12-14 کی قسمیں میری 15 سالہ نوکری کہ 24 سال کی پڑھائی تو بڑا فکرہ شہنشاہ دے علم دی قسمیں 15 سال ذاکری کر دیا ہوئے 24 سال کتاباں پڑھ دیا ہوئے 24 سال دی پڑھائی دی قسمیں ایڈا وڈا فکرہ میری ذاکری سے کوئی نہیں یہ تان پہ پار پاندہ کہ داد چوکھی ملے آپ ہی صاحب لا لیا جی تے توانوں میں علم دی قسمیں جنہ دی عمر 70-80 سال ہے نا انہاں نو غازی دی قسمیں 70-80 سال دے بابیاں نے اٹھ پہنا جی تے اٹھ کے آکھنا جی چل میرا پتر پڑھ لے چل نکل شاباش اساں آگے سنے ہیں میں اگوں نہیں تھے ہوں گا جی کون 70-80 سال والے انور صاحب بیٹھے تے جے غلط ہوئے ایتھے پٹھیاں ٹنگو تے 6 گولیاں مارو قتل معاف تے جے جملہ زوار جی سونا ہوئے قرآن دے مطابق منشی باغ لگے جیسا عظیم علاقہ جڑی اونچی بلڈنگ ہے ایڈا اونچا علاقہ کہ یار حد ہو گئی ہے پھر میں چوڑی کھلار لا پیسے ہم سے وہ تو امام حسین سانو پڑھے دینا ہے ایک دعا واسطے اس کا مطلب ہے قرآن آیا محمد کے دل پر اور حقیقت قلب مصطفیٰ میری ماں بہنوں حسین کی اماں فاطمہ زہرا ہے یہ مطلب ہے جناب زہرا وہ جگہ ہے جہاں پر قرآن نازل ہوتا ہے آج پتا چلا قرآن میں کیوں لکھا ہے کہ بغیر وضو مجھے ٹچ کرنا حرام اچھا جی چاچا جی میں راضی ہو گیا چاچا جی میں راضی ہو گیا قرآن کی قسم راضی پھر آخا اچھا ملک صاحب آنے پھر آ چلو بھائی جان قرآن کے ہیں تو لفظ ہی نا کوئی تورات کو ٹچ کریں تو وضو شرط نہیں انجیل کو ٹچ کریں تو وضو شرط نہیں زبور کو ٹچ کریں تو وضو شرط نہیں قرآن کو ٹچ سے پہلے وضو شرط ہے کیونکہ نسبت زہرا سے ہے جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں سے پائی جانے والا اچھا چلو پروان پہ اندر پڑھ لیتے ہیں بھائی جان موضوع کی گلا میرا قرآن سب کے جانا اچھا کی موضوع ہے اور مولا پائندر باپ کو سلامت رکھے انہیں یہ مطلب ہے ایک منٹ تو آپ آکھیا ہوں پڑھ انہیں 1 منٹ میں دیا گیا پروردگار قرآن کس پہ آئے محمد کے دل ہوں دھیان رکھا جائے ہوں میں ذرا تھوڑا جہا ولا کے لنگا لگا بائی پاس کو دھیان رکھا جائے تو مجھے پوری امید ہے کہ میرا لنگنا ضائع نہیں جان دیا گا سے پروردگار قرآن کس پہ بھیجا مصطفیٰ پہ مالکا قرآن آیا تو ہمارے لیے ہے نا کہ اسی بندے سے پتر بن جائیے آہو نازل مصطفیٰ پہ کیوں کیا
फरमाया उससे क्यों का जवाब सुन। सूरह नहल 16वां सूरा आयत का निशान 44 44 आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये या अल्लाह कदी वो गल समझना जेडी मैं नाम ही आखा तो फिर भी समझना फिर लुत्फे। फरमाया इन्ना अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। हबीब हमने कुरान तुझ पे इसलिए भेजा कि तू सहाबा को बता कुरान में लिखा क्या है। कुरान की कसम खरीद लिया जो खरीदा पैंतन भी कसम खरीद लिया जो अभी 90% बंदे बोले हैं भाई जान 10% वो बंदे जेडे बेचारे मेरी तरह स्कूल के पिछले पास हो गया कोई गल नहीं उन्होंने करना चना मैं भी पट्ठे वाले पेंडू शाह के कोटो होर भी कुछ बंदे पिंड बैठे ने लै भाई पिंड आ सके पिंड वाले ਤੁਹਾਨੂੰ अपने पिंड का वास्ता है ये लाहौर के नाल रल के बोला जे और कहने का मतलब ये है हबीब हमने तुझ पे इसलिए भेजा कि तू बता अल्लाह कुरान में कहना क्या चाह रहा है। लाहौर वाले कुरान पाक दी इसे आयत की कसम ये आयत नहीं तमाचा है उस सोच पे जिसने कहा था कुरान काफी है। सबके जहाँ जनाब सरकार के हाथ में सलामत रखे भाईजान तू आप आख्या पढ़ मैं क्या मैं थोड़ा जहा वल्ला मार रहा बाईपास से मैं क्या बोलूँ उन्होंने चेक करेंगे थोड़ा वल्ला चेक करेंगा बाईपास अपने हाँ जी थोड़ा सारे मैंने रुपये रखा नहीं मालिका आ रखा अकाल चलिए परवरदिगार असा हाल तक 15-20 आयत पढ़ के हिसाब लाया है कि कुरान तेरे नबी पे इसलिए आया कि कुरान मोहताज है मोहम्मद के बयान का। ये गलत है हो अशीयो गल सही से कर जी। हाँ जी भाजी तुम अपने पीरां नूं वड्डा मानते हो कि कुरान नूं? असीं कुरान नूं वड्डा मानते। ये गल पक्की है अगे अगे चला मालिका कुरान मुहताज है तेरे नबी के बयान का। एक ही गल इको ही गल दस बस इको ही कुरान भी गाला पै गया इको ही गल दस तेरे नबी के बयान का तरीका क्या है। अल्लाह फरमाया है सूरह जुमा कभी पढ़ी ना वो दूसरी आयत थी वो मैं पूरा तरीका लिखे पढ़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ी बअसा बिल रसूलन यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्किहिम वयुअल्लिमुहुम अलकिताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सुनो मेरे मोहम्मद के बयान का तरीका ये है यतलू अलैहिम आयातिही जरा इन वक्त पढ़ना पड़ेगा यतलू अलैहिम आयातिही ये आयात की तिलावत करता है। ए मुंशी बागल दे मैंने पता जमीन चो आवाज आने की कि आसमान चो पता मैंने थोड़ा है मैं थोड़ा पुराना नौकर हां मैं होर मैं वयुज़क्किहिम ये जो मेरा मोहम्मद है ना ये पलीत लोगों को पाक करता है। पैसे लेता है मेरे से खाना पास कर पैसे देना भाईजान पैसे देना है मालिक आपको सलामत रखे। फरमाया कि जो मेरा मोहम्मद है ना भाईजान ये पलीत लोगों को भाजी अज की बार है भाजी ध्यान रखोगे भाजी एक गल कर लीए ये तुहाडे मुताबिक भाजी तुहाडे मुताबिक एक गल कर लीए भाजी पहुंचोगे भाजी पक्की गल है भाजी एक बंदा ना इतवार वाले दिन नबी पाक को आके कहता है कि मुझे पाक कीजिए सरकार ने अपना कलमा पढ़ाई था तो भाजी बुद्ध वाले दिन जाके आंदा बुद्ध वाले दिन जाके आंदा मैं भी मुहम्मद वर्गा भाजी मन्ना पड़ा ना बुद्ध वाला हरामी पाक हुआ ही नहीं है। हूँ तो भी कुरान का वास्ता है हूँ मैं बार बार ना आख्या जी क्योंकि मेरे बस हूँ बाहर है ठीक है जे इस तो उत्ते गुंजाइश रही ना फिर मैं आख्या जी करो मुश्तबाई होर पढ़ तो जे थोड़ा वो दिल जिथे काबे की तरह अली रहता है उतो आवाज आए कि यार बस हूँ इस तो उत्ते की अख नहीं फिर तुम मैं आखना पुत्र बस कर एक जुमला मुसैब का सुना तो सलाम करके जा ये वादा हो गया। जे थोड़ा अंदरों दिल आखे कि नहीं यार हूँ ठीक हो गया फिर ठीक है। हजरात वयुज़क्किहिम मेरा मोहम्मद पलीत लोगों को पाक करता है। कुरान पाक की कसम मैं अपने कोलों नहीं पियांदा। याद रखिए जहाँ छोटी पलीती होती है ना वहाँ छोटा नबी आता है। भाईजान
भाईजान कैमरे ने भाई सद के जावा मौला तेन सलामत के हुसैन चेहरा सलामत दे भाईजान मैं बड़ी हौली बड़े ऊंची गल कर छड़ी है बड़ी हौली थले खरस से बहुत उतरा लेवल चेक कर छड़े मैं फिर प्याना तुहानू मैं प्याना जहाँ छोटी प्रीति होती है वहाँ नबी भी छोटा आता है मोहम्मद से बड़ा नबी है कोई नहीं इसका मतलब है जहाँ मुस्तफ़ा आए थे ना एक भी जवाब साहब आंधी पलीत गवांढी पलीत सामने गली वाले तो पिछली गली का तो हाल ही कोई नहीं जे तुहाडा दिल आखे कि मुश्तबाई बस वही इस तो अगे नहीं बनता तुहानू कुरान का नाम है फिर हाथ चुकिया एक बारी हजरात इतनी पलीती थी सगी मां से निकाह सगी खाला से शादी सगी बहन से रिश्ता हजरात फुफी की ख्वाहिश जे तुहाडा दिल आके के बस कर फिर उची दसा ने भाई मां से बहन से फुफी से खाला से शादियां करते थे और मुंशी बाबा जब ऐसे निकाह होंगे तो दुश्मन अली ही पैदा होगा मौला पाइंटर पाक हो सलामत पाजी राजी हो गए पाजी मैं जरा वादा करके पूरा हो गया मौला पाइंटर पाक को सलामत रखे हुण हुक्म है कि मसाहिब का भी 2 मिनट हुक्म है तो तुहानू पता है इस तो बाद मेरे तो बाद सब तो वड्डी इबादत ही है तो जे आखो तो एक फिक्रा आता ही है मसाहिब का फिक्रा आता ही है तैयार हो सारे तुम तैयारी कर लो ठीक है मैं 2 मिनट पढ़ना जी तो फिर जनाब को मैं सलाम करना अज भी मेरा ख्याल है जुलझना का 2 फिक्रे में 2 चौंका जाके ने मेरे मौला हुसैन के कतल दे ते अज मैं तुहानू ये दसन लगा पहले मैं दसो सारे रल के कि इमाम हुसैन किहड़े दिन ज़िबा होए मैं क्या जिन्होंने पता लगा मैं ज़िबा आख्या उन्होंने हाई निकल गई 10 मुहर्रम ये तुहानू सिर्फ यही दसना है कि 10 मुहर्रम इमाम के कतल तो वड्डा काम किहड़ा है कतल इमाम तो वड्डा काम किहड़ा है ये दसना है इस तो पहला 1 मिनट की तमहीद है 1 मिनट का जुमला है तुसां घड़ी वेखनी है मेरा वीर भाई हुण पुत्र जिन्हें अगे आना एक बार आइए पुत्र तुहाडी मेहरबानी है हुण मसाहिब है पुत्र मसाहिब है बेटा तुहाडी मेहरबानी मैं इस काबिल नहीं कि मैं ज़्यादा देर खलो सका मेरी हालत ही वेख रहे हो तुहाडी मेहरबानी चलो चलो भाईजान कोई नहीं भाईजान कोई गल नहीं भाई उंज भी वैसे इधरों लंघना उंज भी नाम मुनासिब है जो कि साड़ियाँ भैणां खलोतियां ने तो बंदा बार बार लांघा बना के आए तो उंज मुनासिब नहीं इधर लिखा जाए मैं गल की ज़िबा वाली तो भाव मिठू बड़ी सोहनी हाई की है हुण मेरा दिल करदा एक मैं सादी गल करा सादी तो है बड़ी डूंगी तो मेरे समेत नाल तुसीं भी हाई करा जी मैं तुहानू 1 मिनट की गल सुनाउण लगा वां कि जदों सैयद बसते किन्ने हाई की मैं दस लगा मौला भाई फिर सदके जावा सदके मेरी भैन सारिया एक बार हाई करो हाँ मैं माँ जी भैन मेरिया पियाँ मैं पहना जो सैयद वसते भावे तू मौला पाइंटर बार तेरी हाय कबूल फरमाए मैं हाय हाय जवार साहब जो सैयद बस हूँ ध्यान सुन ये तुहानू पता जनाजा इधर होना है जो मैं आख्या मैं उदों होना है एक मेहरबानी करा जी कि जरा मसाहिब 2 मिनट में पढ़ ला ताकि फिर जनाजा आउंदियां सोहना लगे हाय च जनाजा सोहना लगता है ना देखा जी उंज तुसीं मैं चुप भी रहा तुसीं लिया सकते हो तुसीं सरदार हो ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਘੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ 1 ਜਾਂ 1.5 ਮਿੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਭਾਈ ਜਰਾ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਸਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਜ਼ੈਨਬ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂਡੇ 'ਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਰਾਂਡੇ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਬਹਿ ਕੇ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਲਕੀਰ ਨਿਕਲੀ वो लकीर आ के ना भाई जान सब बड़ा बड़ा करला पिता के ना लग गया जब अच्छा चल 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 खैर थे मेरी किस्मत मैं समझागा मेरे बयान से कमी सी हाँ नहीं मसाइल हो सके मैं समझागा मेरी नीयत से कोई फर्क सी भाई जान उन्होंने छोटी मेरी भैन छोटी जी लकीर ना रोशनी दी बीबी के सिर पे मैं इंज इमाम हुसैन को लगे इरशाद जी थोड़े जिगर चल जाएगा इंज बोल लगे तो इमाम ने देखा रोशनी तो मेरे मौला ना एंड करके ना भैन के सिर से एंड करके खिलाऊंगा मैं तो सकते जावा मुंशी गाल लगाई
मुझे सबके दवा माँ जी मैं जुमला नहीं आके हाय हाय सारे हाय की पिछले लगा माँ जी एंड करके सही हो गया इरशाद जी सही साहब थोड़ी देर बाद मतलब मटी गुआड़ जी थोड़ी देर बाद ये एंड करके बीबी पाक ने महसूस किया कि मेरे ऊपर मेरा साया है तो एंड वे क्या हुसैन आप कब से जुड़े तो मैं जब से अब तिलावत कर रहा हूँ उन बीबी क्या दी मुझे बात जिमें तुम फजैल सुनते हो ना अज मैं किताब चो लभ के उनकी रिवायत लैके आया कि तुहाडे मिलाज उत्ते दिल के उत्ते 6 बजे तुहाडी हाय निकले तुहाडी हाय कंधा में जाकर टकराए ये तरह तवज्जो कीती ते बीबी आख्या हुसैन जे तू अली दा पुत्र है मैंने अली दी थी ऊंची हाय करे आज ज़ैनब तेरे नाल वादा कर रही है जिवें तू अज मेरे सिर ते साया कीता ना अगर तू कभी धूप में सोया सदके जाना और मैं सदके हाय तो सदके जाना बिस्मिल्लाह करा मेरा पुत्र एक बार करो हाय आपको हाय हुसैन सदके जाना शाबाश बेटा शाबाश भाईजान मालिक आपको सलामत रखे अगर कभी तू धूप में सोया मैं तेरा वीरा मैं तेरा धार लावांगी ये भैन जी ना ये धार दूर ला दिया इन्होंने बड़े मान होते वीर मैं कहना थोड़े मिजाज के मुताबिक ना होए इतों फड़ के मैं भरा सुनिया ये बगैर कहीं लगता बनी थोड़े वास्ते इमाम फरमाया भैन की आखी बीबी आखे अगर कभी तू धूप में सोएगा ना मैं तेरा धार लावांगी मैं हौली जुमला आखना तेरी हाय सुनवा से इमाम हुसैन हो के उन्होंने भैना सोच के वादा करी अगर मैं सोया ही घर से बाहर अगर मैं तुझे प्यार करो बसर के जावा तो मैं बिस्मिल्लाह कर सकते जाना जनाब सईदा आपकी हाय कबूल फरमाए मैं कहना मैं पूरी रिवायत नहीं पढ़नी एक ही फिक्रा खड़ा मैं कहना भाई ले जनाजा जिसे मैं देखना हर पास हाय की आवाज आई है तो मैं तो इस्लाम कर देना अज मेरी मजबूरी समझ रहे दिल करता सी मैं 15-20 मिनट मसाइल पढ़ा लेकिन मजबूरी में स्पीड में काम में मातम भी करना है तो माहौल इंजदा है थोड़ी मेहरबानी मैं तुम्हें फिर जान के साथ दुआ रहा जान के गल्लां च ला के साथ दुआ रहा क्योंकि जुमला इतना बड़ा है इमाम आख्या ज़ैनब सोच के वादा करना अगर मैं सोया ही घर से बाहर अगो बीबी की आती है इन्होंने भैनों की उनाए सुना जे अगो बीबी आती है हुसैन कोई बात नहीं अगर तू घर से बाहर सोएगा ना मेरी कतार भाइयों की है मैं भाइयों को भेज के साया करवाऊंगी चलो के हुसैन को तो है ज़ैनब अगर कतार ही मारे जाए तो मैं बिस्मिल्लाह करा सदके जाना जनाब सईदा आपका माता गुल है मैं सदके जाना जवाब देना नमाज नहीं पढ़ना मेरे भैनों का नमाज नहीं पढ़ना एक फिक्रा रखना दे एक फिक्रा रखना जनाजा हो लगा दे जिन्हें मेरे भैनों मेरी धियां मेरी मावा मैं एक फिक्रा जो बनान जी मैं कहना हो ला तो फिर आ जाए हाले इधर देखा जे एक बार एडी सोहनी हाय करांगे कि इस हाय च जनाजा आंदा सोहना लगे शेरिया खान सही साहब आखा मलिक साहब फरमाया अगर कतार भाइयों की मारी जाए फिर भाई कॉल ना करें अड्डा मिलके अड्डा पक्के वादा हो गया थोड़ा भी वादा हो गया हाय करोगे एक बार माहौल तो बेनियाज होकर हाय करोगे मेरिया भैन मेरिया धियां इमाम हुसैन पे हाय करोगे और मेरे पुत्र सुनो फिर इमाम फरमाया अगर कतार भाइयों की मारी जाए बेटी फरमाया फिर अल्लाह ने मुझे बेटे दिए हैं मैं बेटों से कहूँगी जाओ जाके मामों का साया करो इमाम फरमाया ज़ैनब अगर बेटे भी मारे जाए बीबी फरमाया हुसैन फिर मैं चादर लेके आऊंगी और अपनी चादर से साया करूंगी हुसैन कहता ज़ैनब अगर चादर भी सुना लेगा अगर चादर भी सुना लेगा फरमाया मैं